آواز بڑھائی. نحمدہ ونصلی علی ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جھوم جھوم کر پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علماء کرام کی لمبی فہرست ہے اور وقت کی قلت دامنگیر ہے. اسٹیج پر رونق افروز جملہ علماء کرام و شورائے اعظام اور مجمع کے اندر تشریف رکھنے والے جملہ سامعین حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور معروف آیت تلاوت کی ہے. اور کیونکہ آج کی محفل عظمت والدین کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنی تقریر کا عنوان بھی عظمت والدین ہی منتخب کیا ہے. اور جتنی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کچھ مفید باتیں آپ کے ذہن کے نیا خانے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. امید رکھتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، اس لیے بلا تنظیم اور کوئی تمہیدی گفتگو کیے بغیر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی ہے ترجمہ سماعت کر لیجئے. ریکارڈنگ کریے. تمہارے والدین میں سے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے مہربانی کے انداز میں گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا کر رکھو. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہو کہ اللہ ان پر مہربانیاں فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر مہربانیاں کی ہیں. آج ہمارے اندر ڈھیر ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے اور برائیوں کے اسباب ہمارے ارد گرد موجود ہیں. آج کے سائنس کے ڈیولپمنٹ کے دور میں جب سائنسدانوں کی کوشش سے انسان چاند پر کمر ڈال چکا ہے
और मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हर हाथ में इस नेट के ज़माने में मोबाइल है। गुनाह करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जुर्म और गुनाह के सारे असबाब हमारे हथेली में मौजूद हैं। चाह कर भी हम बहुत सारे गुनाहों से बच नहीं पा रहे हैं। गुनाहों ने हद चहार जाने से घेर रखा है। आज हमारी महफिलें गुनाहों से खाली नहीं होती। जब भी चार बंदा बैठा होता है, आप वहाँ पर जाकर देखें तो आपको महसूस होगा कि किसी न किसी मुसलमान के हवाले से बदगोई हो रही है, चुगलखोरी हो रही है, गीबत हो रही है। हम अपने ही मुस्लिम भाई के हवाले से दिल में कीना बुग़्ज़ पाल रखे हैं। बहुत सारी बुराइयां हैं, किन किन बुराई को गिनाया जाए, किस किस बुराई को गिनाया जाए। आज जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं, उनके औकात उस जगह पर बीतते हैं जहाँ पर ताश की पत्तियाँ उड़ाई जाती हैं, और जो जवान हैं वो बस अपनी आँखों को ताज़गी बख्शते हैं मोबाइल के स्क्रीन से। ढेर सारी बुराइयां हैं, और हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, जो जवान है, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल के दिन में हमारे कांधे का बोझ हमारे कांधे से उतर कर इन्हीं के मजबूत कांधे पर जाना है। मगर इनके कांधे अब मजबूत दिख नहीं रहे हैं। कल का एक नौजवान था, बिल्कुल 17 साल जवान, हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा था, तो उसने एक ऐसी रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के अंदर लाई, एक ऐसी क्रांति लाई, एक ऐसा इनकलाब लाया कि हिंदुस्तान का काया पलट हो गया। जानते हैं उस नौजवान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल का जवान था, आया था तो हाथ में तलवार लेकर आया था, घोड़े पर सवार होकर आया था। मैदान जंग में उसने दुश्मनों पर फतह पाई थी, मगर यहाँ के जालिम कौम और जालिम बादशाहों पर उसने फतह पाई थी, उनके दिलों पर। तो ऐसे नहीं, तलवारों से नहीं, बल्कि वो अपने साथ आए थे तो एक कल्चर लेकर आए थे, एक सोसाइटी लेकर आए थे, तहजीब और तमद्दुन लेकर आए थे, अपनी एक संस्कृति लेकर आए थे। यहाँ की दमतोसी संस्कृति में जीने वाले लोगों ने देखा कि हमारी संस्कृति वो है जिसमें अब सांस लेना दूभर हो गया है। एक नई संस्कृति आई है, एक नई सभ्यता आई है, जिसमें जिंदगी की एक नई किरण नजर आ रही थी। अपने संस्कृति को उन्होंने खैरबाद कहा है और इस्लाम के दामन रहमत को थामा है, और इस तरह इस्लाम फैला है। वो जो संस्कृति लेकर आया था वो नौजवान 17 साल जवान, जिन 17 साल जवानों के कांधे को हम ये समझ रहे हैं कल ये हमारे बोझ को उठाएंगे। कल भी एक जवान आया था, सरजमीने अरब से आया था, हिंदुस्तान के सरजमीन पर कदम रखा था, तो आया था तो अपने साथ एक तहजीब और तमद्दुन लेकर आया था, अपना एक कल्चर, अपनी एक सोसाइटी लेकर आया था। और वो सोसाइटी सिंध की धरती से आगे बढ़ती है और भारत के कोने कोने तक वो संस्कृति फैलती है। मगर अफसोस, सद अफसोस की बात यह है कि हमने उस संस्कृति को खुद अपने हाथों से ज़बा कर दिया है। हमने अपने ही तहजीब और तमद्दुन का गला खोल दिया है। आज हम कहने को तो मुसलमान हैं, मगर कभी फुर्सत मिले ना तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत को देख लीजिए और फिर आईने से पूछिए, आईना आपको जवाब देगा कि क्या आप मुसलमान दिखते भी हो, नारे रोज लगाया करते हो, गुलामे रसूल हो, आशिके रसूल हो। जरा चेहरा तो आईने में देख लिया करें कि क्या आप गुलामे रसूल दिखते भी हैं। लोग बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ुल उम्र हो गए, सर के बाल, दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, मगर क्या मजाल के मस्जिद की चौखट उन्हें दिख जाए, क्या मजाल के उनकी पेशानी सजदे में झुक जाए। लोग बूढ़े हो गए, दांत झड़ चुके हैं, मगर अब भी खुदा की याद नहीं आ रही है, मगर नारे लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। किन किन चीजों को गिनाया जाए। एक वो 17 साल का जवान था, और आज हमारे बीच भी 17 साल के जवान हैं, मगर उनकी शादी कर दी जाए ना तो दुपट्टे की 2 मरतबा हवा लग जाए ना तो वालिदैन की सारी मेहनतों पर पानी फेर देता है। ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज हमारे बीच में दर आई हैं। बस सरेदस्त एक बीमारी का इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइए जरा वालिदैन की आजमत को समझ लीजिए। रब फरमाता है कि दोनों में से एक या दोनों बूढ़े हो जाए। बूढ़ा किसको कहते हैं? लंबी उम्र जिनकी हो जाए ना उसी को बूढ़ा कहते हैं। जिनके दाढ़ी के बाल पक जाते हैं, जिनके सर का बाल पक जाता है, जानते हैं
زمین پر سب سے پہلے بال کس کا پکا؟ اسلامی جی کے جنرل نالج، سب سے پہلے بال سیدنا خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بال پکا۔ داڑھی کا ایک بال انہوں نے دیکھا کہ سفید ہے